بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تازہ نیوز کے ساتھ ماسی مصیبت حاضر ہے۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے، اور اب چلتے ہیں نیوز کی طرف۔ خبر یہ ہے کہ بابو جیل میں یا ریل میں، یہ ایک محاورہ ہے۔ اس کو بابو کی جگہ پہ آپ ہینڈسم کر لیں، جیل میں یا ریل میں، فیصلہ کچھ دیر میں ہو جائے گا۔ اور شہری شیخ صاحب پوائنٹ لٹ گئے، برباد ہو گئے، وہ کیا معاملہ ہے اس پر بات کریں گے۔ پہلے بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو بابو جیل میں ہے، یہ ہینڈسم یعنی کہ عمران خان صاحب جیل میں ہوگا یا ریل میں ہوگا، فیصلہ کچھ دیر میں ہوگا۔ یہ میں کیوں بات کر رہا ہوں؟ دیکھیں، اس وقت ضمنی انتخابات میں پولنگ جاری ہے۔ آج 16 اکتوبر ہے اور 7 حلقے ہیں قومی اسمبلی کے، جہاں سے عمران احمد خان نیازی جو کہ تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، وہ ساری اتحادی جماعتوں کا کلا کار مقابلہ کر رہا ہے، اور اس کا یہ کہنا ہے کہ جناب وہ ساری جماعتوں کو ہرا کے یہ 7 سیٹیں جیت جائیں گے۔ لوگ سر ووٹ ڈال رہے ہیں، دیکھتے ہیں کون جیتے گا۔ یہ جب تک آپ کو شاید ولاگ آئے گا اس وقت تک شاید رزلٹ آنا ابھی شروع ہوئے ہوں گے۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ جو مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کو ایک رپورٹ گئی ہوئی ہے، انٹرنل رپورٹ جو گئی ہوئی ہے، اس میں تحریک انصاف 4 سیٹیں ہار رہی ہے اور 3 سیٹیں جیت رہی ہے۔ یعنی یہ 7 سیٹیں وہ ہیں جن پر مسلم جو عمران خان صاحب ہیں وہ خود کھڑے ہیں۔ ایک سیٹ ہے یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے والی، علی قاسم گیلانی والی، اور وہاں پر سنا ہے کہ علی قاسم گیلانی جو ہے وہ جیت رہے ہیں۔ یہ رپورٹ گئی ہے نواز شریف نو۔ اے دی پائے نوڑ گل کنی صحیح نکلے گی، کنی غلط نکلے گی، تھوڑی دیر میں فیصلہ ہو جائے گا۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بابو جیل میں یا ریل میں، یعنی یہ ہینڈسم جو ہے وہ بھائی صاحب جو یا تو اگر 4 سیٹیں وہ واقعی ہار گئے عمران خان صاحب 7 میں سے، اور ان میں سے 2 سیٹیں جو کہ نون لیگ کی رپورٹ گئی ہوئی ہے اس کے مطابق وہ 2 سیٹیں ہیں جو وہ صوبائی اسمبلی یعنی کے پی کے سے ہار رہے ہیں۔ ایک سیٹ خاص طور پہ اس میں وہ ہے جو کے پی کے سے ہار رہے ہیں، شاید مردان والی سیٹ ہے، ان کے مطابق وہ سیٹ وہ ہار رہے ہیں۔ ایک وہ فیصل آباد سے ہار رہے ہیں، ایک جو ہے وہ کراچی سے ہار رہے ہیں، اور ایک ہی اور ہے جو کے پی کے سے وہ ہار رہے ہیں۔ تو 4 سیٹیں ہیں جو ہار رہے ہیں۔ اگر 4 سیٹیں جو 2 کے پی کے جو بھائی ہر گیا تو پھر بھائی ہینڈسم جڑا نا جیل ہی چاہیے، پھر وہ ریل چ نہیں بیٹھ سکے گا، اس لیے کہ جس صوبے میں ان کی اتنی زیادہ اکثریت ہو کہ پچھلے 2 بار سے مسلسل انتخابات جیت کے وہاں پہ حکومت بنا رہے ہیں، اور وہاں پر اس وقت بھی ان کی حکومت ہو، اور وہاں سے وہ 2 سیٹیں ضمنی انتخابات کی ہار جائیں جو کہ ان کی اپنی پارٹی کی جیتی ہوئی تھیں، تو پھر پائنوں کس منہ نال کٹے گا۔ ویسے عمران خان صاحب کو یہ جو پولیٹیکل اخلاقیات ہے نا، موریلٹی جو ہے، پولیٹیکل ہو یا ادروائز ہو، وہ پائندے کوئی اثر نہیں کرتی، لیکن اثر پڑتا ہے، کیونکہ آپ کی جو سیاست ہوتی ہے وہ ایک اخلاقی اعتبار سے جتنی بہتر ہوگی اتنے لوگ آپ کی طرف آئیں گے۔ اب اگر پائن تو ہار گئے تو پھر تو سر وہ جو خواب ہے کہ جناب میں نکلوں گا گاڑی لے کے اور میرے پیچھے جناب دنیا پاگلوں کی طرح آئے گی، اور پھر ہم جا کے اسلام آباد کا محاصرہ کر لیں گے، اور محاصرہ کریں گے تو شیر شاہ سوری کی طرح میں جناب پھر چڑھائی کر دیں گا، اور جناب پھر اسے فل ٹائم مقابلہ ہوئے گا، اور پھر میں جناب اس حکومت کو وہاں سے بے دخل کر کے تو آپ تخت پہ بیٹھ جاؤں گا۔ یہ خواب ہے نا عمران خان کا، تو وہ خواب جو ہے وہ دیوانے کا خواب بن کے رہ جائے گا۔ لیکن اگر کہیں، اور یہ اگر بہت بڑا ہے، اگر کہیں عمران خان 7 کی 7 نشستیں جیت گئے، جیسا کہ حبیب اکرم صاحب جو کہ ظاہر ہے ان کے حمایتی بھی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ 7 کی 7 نشستیں جیت جائیں گے، یا کم از کم 5 نشستیں وہ ضرور جیت جائیں گے۔ اگر ایسا ہو گیا تو سر پھر بابو جو ہے نا، یعنی عمران خان جو ہے نا، پوائنٹ پھر ریل ہی چاہیے، پھر اس کو پکڑنا اس حکومت کے لیے ایک سیریس پرابلم بن جائے گا۔ پولیٹیکلی بات کر رہا ہوں اس لیے کیونکہ عمران خان کو پہلے آپ کو یاد ہوگا 20 میں سے 15 سیٹیں جیتے تھے، وہ ضمنی انتخابات ہوئے تھے پنجاب کے اندر نا، ان کے کچھ 20 کے قریب لوگ لوٹے ہوئے تھے، اور وہ لوٹے ہونے کے نتیجے میں ان کی سیٹیں گئی تھیں، اور وہاں پر انتخابات ہوئے تھے۔ لوٹوں کو دوبارہ ٹکٹ دے دیا مسلم لیگ نون نے، اور مسلم لیگ نون کے اپنے جو دھڑے تھے انہوں نے ان کو ووٹ نہیں کیا، لہٰذا وہ ہار گئے۔ عمران خان کی گڈی پائنوں تو چڑھ گئی، اب آپ بن گئی پائن بلے دی بات ہے تو گڈا ٹر پیا۔ انہوں نے کیا جناب دیکھو میں کتنا پاپولر ہوں، نون لیگ کی حکومت سر پنجاب کے اندر، اس کے باوجود میں 15 سیٹیں جیت گیا، تو وہ پائن انہوں نے پوئے چڑھے ہیں۔ اب اگر وہ فرض کرتے ہیں کہ وہ اب ان 7 میں سے سر 5 سیٹیں جیت گئے، مطلب 7 نام ہی جیتن،
ਪੰਜ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਨਾ ਭਾਈ ਨੇ ਤੇ ਹਾਲਾत ਜਿਹੜੇ ना वो इमरान खान की फेवर फिर टुर पैने हैं और एक ऐसी क्या कहते हैं वो पॉलिटिकल वेव आएगी जिसके नतीजे में इस हुकूमत के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा। देखिए इस हुकूमत की भी वैसे मैं आपसे अर्ज करूँ कि कोई जहालत की कोई हदें होती हैं जो भाई ने सारे क्रॉस की बैठे ने। पॉलिटिकल जहालत की बात कर रहा हूँ। आज सर 16 तारीख है और 16 तारीख को नई आनी होती है जनाब पेट्रोलियम की प्राइसेस। तो भाई तुसी जिसले वो कह रहे ने जेड़े पेट्रोल का हिसाब किताब लाने वाली पार्टी है वो कह रही है भाई 15 रुपए एक लीटर घट सकता तो घटा दो, नहीं घटाया, ठीक है डार साहब ने, और जाहिर है कि ये बात उनके खिलाफ गई है। अब जो तरीके इंसाफ का मीडिया सेल है सर वो इतना तेज़ है भाई कि उन्होंने फड़ना पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, मौलाना फजल रहमान इन्हों के वस का काम नहीं है। ये इसमें बिल्कुल फाड़ी हैं, वो बहुत तेज़ हैं, उनके पास दुनिया की लेटेस्ट तरीन टेक्नोलॉजी है और वो उसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं। इन्हों के कोल हाइए तक साइकिलो स्टाइल प्रेस लीज है जो फैक्स के ऊपर कभी चला करती थी, मेरा ख्याल है उस तरह की ये सीन चलाते हैं जिसके नतीजे में ये अपना पैगाम बर वक्त नहीं पहुँचा पाते। अब मैं आपसे अर्ज़ करूं कि इमरान खान साहब ने कल इमरान अहमद खान को ही यानी इमरान रियाज खान को इमरान खान नियाजी ने ये इंटरव्यू दिया है और उसमें कहा कि जनाब मैं इसी महीने यानी अक्टूबर में ही बाकायदा तौर पे ऐलान कर दूंगा कि आओ जी लॉन्ग मार्च खेडिए और मैंने जो प्लानिंग की हुई है किसी को नहीं पता, तो अंदाजा ही नहीं मैं की कराँगा, ये मन नहीं रोक सकते। अच्छा अब वो इतने एतमाद के साथ ये बातें कहते हैं कि सर वाकई बंदा कहता है कि यार मतलब सादा लोग जो देहाती होंगे आम शहरी जो होता है वो कहता है यार वाकई को पायन बड़ा करू आदमी हुकूमत फड़ नहीं पा रही, ये हाथ बड़े पक्के ने, लम्बे हाथ ने ये, लिहाजा लोग उनसे इंस्पिरेशन लेना शुरू कर देते हैं। इमरान खान साहब को रोकने के लिए फिर अगर वो 7 में से 5 सीटें जीत गए फिर राणे सरा की डांग ही काम आएगी बहन। उसके अलावा इमरान खान को रोक कोई नहीं सकेगा और फिर पंजाब के अंदर तब्दीली लाना बहुत ज़्यादा लाजम हो जाएगा। अगर पंजाब में तब्दीली ना आती हुई तो फिर गवर्नर आज लाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, लेकिन फिर पॉलिटिकल हालात जो हैं वो इस हुकूमत से इस तरह आराम से संभालने वाली कहानी कोई नहीं रहेगी। ये मैं आपको अपना तजिया दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि रिज़ल्ट क्या आएंगे और लोग किस तरह वोट डालेंगे, लेकिन जो अभी तक के हैं वो टर्न आउट वो कोई इतना ज़्यादा नहीं है और ज़्यादा टर्न आउट ना होना जो है वो इमरान खान के लिए नुकसानदेह है। अभी तक जो मैं देख रहा हूँ और जो इस वक्त इतलात चल रही हैं कुछ हलकों में टर्न आउट ठीक है, कुछ में कम है, कम जहाँ पे है ना वो सर इमरान खान के लिए नुकसानदेह, मेरा ये अपना ख्याल है। अब बहरहाल सूरत हाल जो है वो जब इलेक्शन 6 बजणगे और उसके बाद क्या कहते हैं रिजल्ट आने शुरू होंगे तो पता चल जाएगा, रात 12-1 बजे तक गल क्लियर हो जाएगी। लेकिन मैं ये ईमानदारी से समझता हूँ कि इमरान खान अगर आज का इलेक्शन जीत गए सर इस हुकूमत के लिए सीरियस प्रॉब्लम जो हैं वो पैदा हो जाएंगे पॉलिटिकली, और वो फिर ज़ाहिर है कि इंतज़ामी वालों से भी प्रॉब्लम्स इमरान खान पैदा कर देंगे। लिहाजा ये आज का दिन जो है ना बहुत एक अहम दिन है पाकिस्तान की तारीख के सियासी दोराहे के हवाले से और इमरान खान की अपनी सियासत के हवाले से बहुत अहम दिन जो है वो आज का है। मैं इसको इस तरह से डेट कर रहा हूँ। अब मैं आता हूँ उस बात की तरफ कि शेख रशीद लुट गए। देखिए शेख रशीद और उनके भाई हैं शेख सदीक, ये दोनों भरावां ने ना पायन मल मारी एक जगह होती है, उसको कहते हैं लाल हवेली। अच्छा लाल हवेली जो है सर ये मतरूका वक्फ मलाक की एक प्रॉपर्टी है। मतरूका वक्फ मलाक जो है इसकी कोई 7 के करीब प्रॉपर्टीज़ है जिसके ऊपर शेख रशीद और उनके भाई जो हैं वो काबज हैं। मतरूका वक्फ मलाक वालों ने इनको नोटिस किए, काफ़ी अरसे से नोटिस खेल रहे थे, चले आ रहे थे, लेकिन वो भाई गल किसी पासे बनती नहीं सी भाई। आज फाइनली जो है उनको फाइनल नोटिस दे दिया गया कि जनाब तुम विलय कर दो वरना 19 अक्टूबर यानी आज से ठीक 3 दिन बाद 19 अक्टूबर ये 2 दिन बाद बाकायदा तौर पर डांग छोटा लेके चढ़ाई होगी और पुलिस जो है वो आपके ये जगह खाली कराएगी। शेख रशीद साहब तो भाई लुट गए ना, शेख रशीद शेख पुत्र हो गए तो घर वेला करा लो तो भाई ने बाकायदा आता काम हो गया। वो तो यानी वो हर शह जी ना उत्ते लुटा देगा, फट गए वेली नहीं छेड़ेगा, क्योंकि शेख साहब की वो एक पहचान बन चुकी है। इसके लिए वो बड़ी कोशिशें कर रहे हैं लेकिन अभी दाल गलती दिखाई नहीं दे रही। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि शेख साहब जो हैं वो
बहुत सारी उतलियाँ हेठलियाँ मार रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि जनाब मेरा 6 महीने से किसी कमांडर के साथ रब्ता नहीं है, रब्ता उधर ही मुनक़ते है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो इमरान करने जा रहे हैं वो ठीक नहीं है। इस तरह की बहुत सारी बातें शेख साहब मुसलसल करते चले जा रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ सुन कोई नहीं रहा। और मैं आपसे अर्ज करूँगा कि आवाज़ उनकी सुनेगा भी कोई नहीं। ये जो मतरूका वक्फ मुलाका महकमा है ना सर, ये कोई महकमों में से महकमा नहीं है ऐसा कि इसका डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो बेचारे दी टोटल मेरे ख्याल को 16वें ग्रेड दी या 17वें ग्रेड दी नौकरी होंगी है। इंस्पैक्टर भर्ती होता है, उस तो बाद रेड़दा रुड़दा बेचारा डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर बनता है। तो उसकी इतनी हैसियत नहीं होती कि शेर रशीद जैसे कद काठ वाले आदमी को वो इस तरह से निकाल दे। कानूनी एतबार से तो हर सिपाही की बड़ी अहमियत होती है, लेकिन जो पाकिस्तान का निज़ाम है उसमें उसकी इतनी अहमियत नहीं है। इसका मतलब है कि पीछे से कोई जो हाथ था शेर रशीद को प्रोटेक्ट करने वाला वो हाथ उठा लिया गया और ए पाए न हूँ सरकारी मुलाजम बस ए पता लगना चाहिए कि ए बंदा इसलिए कमज़ोर पोजीशन च है। तो फिर सरकारी मुलाजम जिमें इल्ला करके पहनते हैं ना, जिस तरह उड़ के पहनते हैं, वो फिर अब शेर रशीद साहब जो हैं वो मज़ा ले रहे हैं और वो उनसे घर खाली कराने की मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं। अब देखते हैं आसफ खान साहब डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर हैं और उन्होंने डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी के साथ यानी उनकी ताउन से एक लेटर लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये कि ज़िला इंतज़ामिया नाल जाएगी, पुलिस नाल जाएगी पाइन और पिंडी की बल्दियात का महकमा भी साथ होगा जरा कि वेला कराएगा शेख साहब से। तो ये बड़े एक अजीब सा मंजर होगा। मेरा ख्याल ये है कि शेख साहब जो है ना ऐसा किसी ना किसी तरला पालेंगे कि ये जो उनसे झुग्गी उन्होंने वेली कराई जा रही है ना वो रुक जाएगी। वैसे एक बात है, शेख साहब अरबपति आदमी है सर, मैं आपसे ये बात जो है बिल्कुल यकीन के साथ कह सकता हूँ। चले अरबपति छोड़े, करोड़पति आदमी तो लाजमी है, उनकी सालाना करोड़ों रुपए इनकम है। मुझे समझ नहीं आती कि भाई ने ए जी 7 मरले दी या 5 मरले दी लाल हवेली तुसी मल के बैठे हो, ये चो की करना है? अगर फर्ज करें आपने ली भी है तो किराया टाइम दे दो यार। फर्ज करें अगर आपका इतने दिल आया है तो किराया टाइम दे दो। अगर आपने किराया टाइम पे नहीं देना तो फिर भाई ने वेला कर दो। वैसे आपने क्या करना है, आप वहाँ पर ही कोई और जगह खरीदे, वड्डी जी हवेली खरीदो, वो नाम लाल हवेली रखो, उत्ते बहियो मजमा लाओ अपना जो तुम कर दे। पैसे जिसके पास हों वो किराए पे बैठे और फिर किराया भी ना दे, यानी चोरी ते उत्तों सीना जोरी, ये बात तो गलत है। ये महकमे को भी सोचना चाहिए। अज ख्याल आया पहले इन्हें वरिया तो मल के बैठा है, पहले तुहानू ख्याल नहीं है इस गल का। तो मैं कहना एक्चुअली ये चाहता हूँ कि शेख साहब इस वक्त कमज़ोर पोजीशन में है, महकमा शेर हो गया क्योंकि पिछों हाथ थे कि जनाब जाके शेख साहब का जरा वेला कराओ। एनी टोटल गल है। अगर जनाब शेख साहब की मौलाना फजल रहमान ने टिच बटना की जोड़ी होंगी या अभी तक इमरान खान की हुकूमत होती तो शेख साहब वाल कोई अख चुके तक जाता। ये आसफ खान साहब जो नहीं ना किसी ने सुनना, ना डिप्टी कमिश्नर की जरूरत होनी सी, बल्कि इस महकमे के चेयरमैन की जरूरत नहीं होनी थी कि वो शेख साहब को जो है मतलब क्या कहते हैं थोड़ा जा घूर के भी देख लवे कि उनके बारे में गलत सोच भी ले, सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो सिर्फ इस वक्त शेख साहब चूँकि कमज़ोर है इसलिए महकमा उनके ऊपर चढ़ाई कर रहा है, वरना इन्ने साल तो उन्हें अखा बंद की सन ना मजीद रह सकते हैं। बहर शेख साहब ने इस वक्त आतारा मुकाम है और आतारा मुकाम ही जो है वो पाकिस्तान की सियासत में शेर रशीद के यारे गार इमरान अहमद खान न्याजी के लिए भी है। अगर आज का इलेक्शन वो जीत गए तो सर फिर उन्होंने दी गड्डी जी है ना उन्होंने फड़ेगा कोई नहीं। मैं आपको सच्ची बात ईमानदार से बता रहा हूँ, फिर वो गड्डी बिल्कुल 140 मील फी घंटे की रफ्तार में जाएगी। लेकिन अगर वो इलेक्शन हार गए तो गड्डी भाई टेंशन छड़नी नहीं, वो गड्डी उत्ते ही बढ़ी जानी है। लेकिन दोनों सूरतों में ये जो हुकूमत है इनके लिए भी एक जो है सीरियस पॉलिटिकल क्राइसिस मैं देख रहा हूँ। अगर जीत गए इमरान खान तो भी, अगर हार गए तो भी। जीत गए तो ज़ाहिर इनको रोकना एक मसला होगा, हार गए तो फिर भी इमरान खान बाहर निकलने की वास्ते मारेगा तो गिरफ्तार कर लेंगे तो फिर कितनी देर रखणगे, कितने नज़र बंद करेंगे। और अदालतें तो वैसे ही आपको पता है आजकल बहुत ज़्यादा इंसानी आज़ादियों के लिए उनके दिल में बहुत ज़्यादा तड़प पैदा हुई है। तो फिर की बनेगा, हालात सीरियस रुख इख्तियार करने जा रहे हैं। मैं कम अज़ कम ऐसे ही समझता हूँ, आप पता नहीं कैसा समझते हैं। जैसा भी समझते हैं लिखिएगा ज़रूर, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर कितना ही मिलते हैं अगले मिलाद में।